Okay, I'm an architect, but yes, I don't want to be known just for being an architect. आपकी स्टोरी मैंने थोड़ी देर पहले अपने कुछ लोगों से सुनी। मैंने सोचा कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाए और अगर उस स्टोरी से किसी को भी अगेन कोई मोटिवेट होता है, कोई इंस्पायर होता है, तो आपका भी और मेरा भी, हम दोनों का शायद काम हो जाए। The biggest learning that came in my life when I was lying on that road and मेरी body bleed कर रही है, if this was it for me, if this is it for me and मैं अल्लाह मियाँ के पास अगर ये मेरे, because I thought कि मेरा तो हो गया काम, I know I'm coming to you, but I just show me my parents for one last time and I know I'm coming to you. Will अल्लाह मियाँ ask me तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारे रेज्यूमे में क्या है, तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या है, तुमने कितने घर किए? I said no. He's just going to ask me two things: how you were as a human being and how you were as a Muslim. He said, "Ke Harim, look, things are very serious, and there's 70% chances you won't be able to walk. So you need to learn how to be on a wheelchair." मैंने उन दिनों में बहुत सीखा है. अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपने स्कूल में सीखा, अपने प्रोफेशनल करियर में सीखा, no. This Harim was not the Harim of 23rd November. She had evolved. Her perspective of life had changed. क्लाइंट्स पे ये इंश्योर करती हैं कि फॉर द मुझ जैसा क्लाइंट है, मुझे रेड कारपेट चाहिए, ब्राउन पर्दे चाहिए, एग्जांपल है। अगर आपको एक लाल कारपेट पसंद भी आ रहा है तो मैं आपको रीजंस बताऊंगी लॉजिकली कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एंड आई थिंक हमारा प्रोसेस इतना ब्रेक डाउन हुआ हुआ है कि अगर एक घर आता है, हम पहले एक जर्नी पूरी शुरू करते हैं, हम उनको पहले हर चीज़ दिखाते हैं, हम उनसे पूरी एक चीज़ की कंफर्मेशन लेते हैं, उनको विजुअलाइज करवाते हैं, उनको एक एक मटेरियल फील करवाते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी गो ऑन साइट। हरीम तारिक, कैसी हैं आप? हाउ आर यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आपकी स्टोरी मैंने थोड़ी देर पहले अपने कुछ लोगों से सुनी ऑफिस के। मैंने सोचा कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाए और अगर उस स्टोरी से किसी को भी अगेन कोई मोटिवेट होता है, कोई इंस्पायर होता है, तो आपका भी और मेरा भी, हम दोनों का शायद काम हो जाएगा। Exactly. I think my main motivation or to target to come on this podcast is also that if one listener, if one person can get inspired by any single word or sentence we say, I think we have done our job here. Excellent. And that's what the main motive is about this कैसे conversation. स्टार्ट किया आपने, कैसे इंस्पायर हुई इंटीरियर डिजाइनिंग में आना, सारे स्पेसेस स्टार्ट करना? So I feel like with creativity it is always something that is God gifted. ठीक है, it's like अल्लाह मियाँ आपको एक चीज़ से लाइक ब्लेस करता है. सो विद मी ऑल्सो इट वॉज लाइक समथिंग लाइक एज अ किड आई वॉज ऑलवेज इन टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी गुड प्रिविलेज बैकग्राउंड एंड वी ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विद there's like doctors and engineers and all of that, but with us like our parents were very open. They never stop us in saying कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. Like we're 3 sisters and 1 brother. My little sister is a doctor, my second sister is like double master, she's like doing into business and stuff. Then I am like into interior and architecture, and my brother, he's still studying. So they never stopped us in selecting कि नहीं यही करना है, right? So with that diversity that we got from our family, so like I said कि जब मैं बचपन में केक कटता था, उसकी प्लेट देखती थी, I was like how can I transform into a frame, picture frame. So that transformation and that art का कीड़ा बचपन से था. And then बड़े होते होते I was also really good at my education as well. I was good at maths. I was an engineering student. But then I thought कि what if we combine arts and maths together? So calculation and arts together, so it came out to be a design related field, and there was only one university that I applied in. There was only one field that I applied in. It was Indus Valley School of Arts and Architecture. I applied in there, I got it, and then I think there was no looking back from there. Definitely बच्चों की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है where they don't know what they want to do, and it came in my life as well. जब आपको चूज़ करनी होती है अपनी फील्ड, एंड मुझे याद है मैं ऑनलाइन गई थी और मैंने कोई ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी अजीब सी, पता नहीं, वो सिर्फ एक दुनिया की एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र करी थी, एक मुल्क ऑफ़र कर रहा था. ना मैं अपनी अम्मी को जाके क्या बताऊँ, मैं ये एक फील्ड ढूंढ कर आई हूँ. बट देन माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव. शी सेड ओके, यू वांट टू डू दिस, परस्यू इट, गो इन इट. एंड आई एम द ओनली पर्सन हु एक्चुअली गॉट इनटू एन आर्ट स्कूल, लाइक कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू हैव अ डॉक्टर इन योर फैमिली. एंड मेरी अम्मी ने एक कॉर्नर है, उसमें मुझे वो थोड़ा बुली लगता है, दो इट्स अ कॉर्नर वेयर माई सिस्टर्स ट्रॉफीज़ आर देयर, उनकी शील्ड्स पड़ी हुई हैं फर्स्ट सेकंड, और मेरे वहाँ पे आर्ट के सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं. एंड देन हाँ, बट मुझे उसी से खुशी होती है. सो देन बट आवर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, सो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. एंड अच्छा, एक बात आपने की कि कुछ ऐसा वक्त आता है बच्चों की लाइफ में जहाँ वो डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट टू डू, तो उस वक्त क्या करना चाहिए उन बच्चों को भी, उन पेरेंट्स को भी? आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लिसन टू योर इंस्टिंक्ट.
ठीक है, जो हम अक्सर सोच रहे होते हैं ना कि हमारी हॉबी है, ये हमारा पैशन है, अल्लाह मियाँ ने सबको लाइफ में, उनके दिमाग में, उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई प्लस और माइनसेस दिए होते हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड दैट पॉजिटिव एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड देन यू नीड टू परस्यू दैट एज अ फील्ड. लाइक आई सेड, बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता था दैट आई कैन टर्न इट इनटू अ प्रोफेशन एज वेल. I love transforming things. आप मुझे मग दे देते मैं उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देती. So that means I love transformation and I love design. So now how I linked it into my field is was, okay, I combine design with it. If I would keep on thinking, no, I have a doctor and we come from a business background, we do this, I would have never able to pursue my dreams and I would पेरेंट्स को भी लिबर्टी देनी चाहिए. देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए. कहते नहीं जी, बचपन से तो हमें तो बताया गया था पायलट, डॉक्टर और एक दो इंजीनियर आई थिंक आजकल की इतनी ओपन लिबरल हम आजकल के दौर में रह रहे हैं, सो मॉडर्न, दैट पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी ओपन अबाउट थिंग्स एंड दे शुड बी. इफ समबडी इज गुड एट होस्टिंग, लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, then let them do it, right? What if you're not doing this then? Who will hear these conversations, right? So you need to let people do what they're doing. And your second question was about Sarik Spaces. So just a disclaimer that it's not going to be a very, it's going to be a bit of an emotional story because it is a very, मैं अक्सर जब भी हमसे कोई पूछता है हमारी कंपनी की स्टोरी तो हम उसको डिस्क्लेमर देते हैं that are you ready to listen because ये बहुत एक इमोशनल जर्नी है. अच्छा, आज तो आपने बतानी है. Yes, definitely I'm here to tell it and for the first time. And I was basically a corporate rat. Let's start with that. I was working in some of the very reputable firms of Pakistan and I was very happy being a corporate rat. I never thought कि मैं अपना कंपनी शुरू करूँगी, कुछ करूँगी. And also to be very honest, हमारे घरों में encourage लड़कियों को इस तरीके से किया भी नहीं जाता that we tell a man that okay, you're a bread earner. But with females, वो business woman oriented हम उनसे expectations नहीं रखते. So when we are not keeping those expectations, तो girls के अंदर वो वैसे भी inbuilt नहीं होती है. बस कुछ अरसे बाद शादी हो जाएगी. And also to be very honest, a lot of my answers will be spiritual as well because I've read Quran's translation in detail. Even in Surah Nisa, Allah Miya says that male is the bread earner, which is fine. But हमारे लिए challenges दो होते हैं. एक तो हमारी society हमें train नहीं कर रही है as pursuing or being an entrepreneur, and secondly हमारा दीन भी कहता है कि you know, a male is the bread earner, but yet you can still like, you know, choose your things wisely, what you want to do and what you don't want to do. So उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है कि आपको ज़्यादा उस पर working करनी है. So well, I was a corporate rat. I was fine working with my 9 to 5. And I remember 2019, Ramzan, we went for Umrah and our field is very materialistic, okay? So it has got to do with luxury, it has got to do with good spaces and, you know, like, there needs to be amazing furniture, amazing lights, like, you know, it's all about display, right? So it is very materialistic as well. So when I went to that Umrah and when I came back, I felt a bit uncomfortable because मुझे थोड़ा सा होता था कि what am I doing? But then what became a source was that I was not okay with the work cultures that existed in our country, I would say, or in Karachi specifically. For example, we come from a school thought जैसे हमारे parents ने हमें सिखाया that you are defined as a person of how you treat people below you and not treat people at your level. तो मैं बहुत ही नोटिस करती थी दैट यू नो कि जो हमसे नीचे स्टाफ होता था, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, बिलिटल किया जाता था. आई यूज टू थिंक दैट इफ आई एम एन एजुकेटेड पर्सन एंड आई हैव अ डिग्री एंड देन आई एम सपोर्टिंग एन एनवायरनमेंट लाइक दैट, आई हैव स्टिल अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई एक्स बॉसेज एंड एक्स कंपनीज, बट आई वॉज नॉट ओके विद द एनवायरनमेंट एंड आई थॉट टू रिजाइन. देन माई नोटिस पीरियड वेंट ऑन फॉर लाइक 7-8 months and so I told them to find a replacement and they were like कुछ projects चल रहे हैं, आप complete करके चली जाएं, this and that. So it was going on with that. So November, अच्छा, I really want you guys to notice the timeline. अब भी ये मेरे लिए बातें बताना बड़ा आसान है, जब हो रहा था तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था. November 23rd November 2019 is when my accident happened, and 22nd November को रात को there was an event of my कॉर्पोरेट ऑफिस का एक इवेंट था जिससे लाहौर की टीम भी आई हुई थी और हम लोग ये जहाँ पे लेजेंड्स अरीना बन गया वहाँ पे वी हैड लाइक अ क्रिकेट मैच काइंड ऑफ अ थिंग एंड देयर वर 2-3 एम्प्लॉयज़ दैट वर इन क्वाइट अ लॉट ऑफ लाइमलाइट बिकॉज दे वर लीविंग. ठीक है, तो सारी लाइमलाइट उन पे थी कि इनका ये आज लास्ट डे है. सो आई लेफ्ट माई, आई थिंक दैट्स
मैं वहाँ से निकली हूँ रात के 11:30 क्योंकि इवेंट था, सबसे खुदाफिज करके 11:30 वहाँ से निकली हूँ. एंड सैटरडे था नेक्स्ट डे, विच इज़ 23rd November 2019. दिस डेट इज़ engraved in my life because my life changed 360. I wouldn't say U-turn हुआ, 180 हुआ, it was a 360 shift. And I woke up at 9 in the morning, and 9:15 I had my accident. And not going too much into the details of the accident, but basically I injured my both tibia and fibia. मेरी दोनों टांगें completely crush हो गई थी. My ankles were gone. My back spine was injured, and I was 23 at that time. And the biggest learning that came in my life, and I was lying on that road, and मेरी body bleed कर रही है, muscles जो हैं वो निकल रहे हैं, टिश्यूज़ हैं. माई लेग वॉज लाइक लाइक इट वॉज हैंगिंग लाइक दिस. ठीक है, मतलब इट वॉज लाइक माई बोन्स वर क्रश्ड. मेरी दोनों टांगें कम्प्लीटली क्रश हुई हुई थी. द बिगेस्ट लर्निंग दैट केम एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ वॉज दैट इफ़ दिस वॉज इट फॉर मी, इफ़ दिस इज़ इट फॉर मी, एंड मैं अल्लाह मियाँ के पास, अगर ये मेरे, बिकॉज आई थॉट कि मेरा तो हो गया काम यहाँ पे, मैं आपके पास आ रही हूँ. आई लुक्ड अप टू द स्काई, आई वॉज हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस, एंड ब्लर था मेरे सामने. एंड आई लुक्ड अप एंड आई सेड, अल्लाह मियाँ, आई एम कमिंग टू यू. आई नो आई एम कमिंग टू यू, बट आई just show me my parents for one last time, and I know I'm coming to you. Then the second thought that came in my mind was like, if this was it, will I take my clothes with me? मतलब will Allah मियाँ ask me तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारे रेज्यूमे में क्या है, तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या है, तुमने कितने घर किए. I said no. He's just gonna ask me two things: how you were as a human being and how you were as a Muslim. And these are the two least things that we think about, and we are just running after the world, right? And to be very honest, मैं 23 की थी, और पिछले सालों को जब मैं देखती थी मुझे होता था मैं तो कुछ भी नहीं किया. What have I done? I wasted my life because I don't even remember the last conversation I had with a human being which was very kind of me, that I had a very kind encounter with anybody. I didn't even remember that. एंड मेरा फ़ोन मेरे पास था. हमारे स्पीड डायल में सबके नंबर होते हैं, हमारे पेरेंट्स के, हमारी सिस्टर्स के, हमारे फ्रेंड्स के. बट आई वॉज सो ब्रोकन, आई कुडंट पिक माई फ़ोन एंड लाइक कॉल समवन के हे दिस हैज़ हैपेंड विद मी, राइट? सो this is the reality of life, this is the reality of human beings. And आई थिंक हम ये चीज़ें छोड़ के हम दूसरी दौरों पे लग जाते हैं. उस टाइम पे आपको पता है मुझे किसने उठाया था? गार्ड्स, ड्राइवर्स. दे पिक मी अप एंड दे पुट मी इन द कार. एंड वही वाली बात ना कि हाउ डू यू ट्रीट पीपल बिलो यू, विच इज़ ह्यूमन नेचर. आप इंसानियत यही है ना कि आप अपने से नीचे वालों को कैसे ट्रीट करो. अगर आप रोड पे पड़े हुए हैं, अगर आपका एक एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं आपके कोई दोस्त यार आपको आके उठाएं. उस टाइम पे तो जो लोग रोड पे मौजूद है वही आपको उठाएंगे ना. सो एट दैट पॉइंट इट रियली मैटर्स ऑफ हाउ यू वर एज अ ह्यूमन बीइंग, आई फील लाइक. And so that's when my journey started. I still feel like I was very, alhamdulillah, very privileged that my elder sister, who's a doctor, I think the credit goes to her. She managed it. She called at the hospital. We went. The staff was ready. When I came there, their ER head came to me. They saw me. They said, she's so injured. We can't touch her right now. इसको simply room में आप shift करें. So तब तक my sister had joined me in, and my sister has worked in a lot of emergency wards, and उसने बहुत worst cases देखे हैं, ठीक है. And when I saw her, when they moved me into the X-ray table, and उसने जब screen पे देखा और जब मैंने उसका एक expression देखा, and her color was blue, and I saw her and I was like, okay, I think something very serious and major has happened. क्योंकि मुझे लगा कि उसने देख लिया था कि इसके आगे coming वाला time. पता नहीं चल रहा था सर? मुझे पता नहीं था. I was not conscious at that time, but I saw her expression, and मुझे इतना आइडिया हो गया था कि मेरी लाइफ यहाँ से नॉर्मल नहीं होगी. It's going to be different because the expression that I saw at my sister's face, it was so के मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि मुझे आइडिया हो गया था कि बहुत बड़ा डैमेज हो गया. देन वी वर मूव टू द रूम. नेक्स्ट डे संडे था. द सर्जन्स केम, एंड खैर omitting that part, I survived an 9-hour long surgery. They implanted 2 rods, which were like 3 feet rods in both my legs with 8 screws. My leg was fully banded. I also had a fractured spine, obviously. मेरे 7-8 दिन हॉस्पिटल में गुजरे थे, एंड मैंने उन दिनों में बहुत सीखा है. अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपने स्कूल में सीखा है, अपने प्रोफेशनल करियर में सीखा, नो. आई थिंक माई टाइम फ्रॉम माई हॉस्पिटल टिल माई बेड जर्नी, विच वॉज 6 months on bed,
and that is the time that has taught me a lot. And my life for 6 months were 24/7 I had to lie down straight. I couldn't turn right, I couldn't turn left. मैं सिर्फ सीलिंग्स को देखती थी बिकॉज मेरी स्पाइन भी फ्रैक्चर थी और मेरी टांगें भी इतनी फ्रैक्चर थी कि मैं मूवमेंट ही नहीं कर सकती थी. सर्जिकल पेन था, अंदर से बोन्स टूटी हुई थी, मसल्स हील करने थे. सो आई वॉज स्ट्रेट ऑन द बेड. एंड मुझे तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती थी दैट पीपल आर एबल टू गो टू द बाथरूम. आई कुडंट इवन डू दैट. आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन. एंड दैट्स वेयर लाइक यू नो जब भी आपके साथ कोई ट्रॉमा होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ ये हो गया है, और फिर आप अपने आप को उस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये हो गया है. तो आपके लिए हर चीज़ में आई फील लाइक दो तरीके होते हैं. या तो आप चीखो कि नहीं इट्स नॉट फेयर, वाई मी एंड दिस एंड दैट, और यू गो ऑन द अदर साइड एंड यू चेंज योर ट्रॉमा इनटू समथिंग फिनोमिनल, which is the positive side. I still remember people would come to me and they go like, you need to cry, you need to let it out, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो गई है, you're just 23 and you know इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और ये और वो. मुझसे नहीं रोया जाता था. I was just quiet, I was in a shock. मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे साथ क्या हुआ है ना. आई रिमेंबर, एंड कोविड आ चुका था बाय द टाइम, बिकॉज 2019 नवंबर की हम बात कर रहे हैं एंड दिसंबर तक कोविड आना शुरू हो गया था. और so, सारे 6 months कोविड में भी थे. कोविड में भी थे. ठीक है. सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कोविड में हमें हॉस्पिटल के जो विजिट्स करने होते थे. सो मैं तो बहुत फास्ट पेस में ये स्टोरी सुना रही हूँ. वो एक दिन एक मिनट वाज अ स्ट्रगल एंड अ जर्नी. एक दिन एक साल का होगा. ऐसा ही होता था. एंड सो आई रिमेंबर मुझे सब कहते थे कि यू नीड टू क्राई, यू नीड टू लेट इट आउट. एंड मुझे होता था कि who will understand what's going on. And the first time I remember how I became so spiritual was that I heard azan, and when I heard Allahu Akbar, so it's God, Allah is the greatest, He's the biggest. And that's when I realized that no, my parents can't understand, my siblings can't understand. He knows what has happened with me and He will understand. And I cried on Allahu Akbar. And that's when I said, okay, this is my calling maybe. शायद मैंने फिर अल्लाह मियाँ से कभी भी ये नहीं बोला why me. I said, okay, अल्लाह मियाँ, alhamdulillah, at least I'm breathing. ओके फाइन, आई कांट वॉक, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ आगे यहाँ से क्या है, बट एटलीस्ट मेरी सांसें तो हैं. एटलीस्ट आपने मुझे एक सेकेंड चांस दिया है. क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, पीपल पास अवे इन दोस, राइट. बट जस्ट टू हैव दैट ब्लेसिंग कि अपने डिस्गाइज मोमेंट्स में भी आपने एक यू नो व्हेन यू आर इन द लोएस्ट पॉइंट, उसमें भी आपने नेमतें ढूंढनी है, ब्लेसिंग ढूंढनी है. बिकॉज अल्लाह मियाँ सेज इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली गिव यू मोर. उस वक्त भी इतने ऑप्टिमिस्ट थी आप, आपको सब कुछ तो उस वक्त ख़त्म लग रहा होगा. आई थिंक फॉर दिस आई विल गिव क्रेडिट टू माई मदर, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में आपका ब्रॉटअप, आपकी परवरिश और आप कैसे टैकल करते हो, आई थिंक वट एवर आई एम राइट नाउ डेफिनेटली गोज़ द क्रेडिट टू माई मदर. बट उस टाइम पे माई सेल्फ स्टीम वॉज, मुझे कुछ भी नहीं पता था. ठीक है, मुझे 6 months बेड रेस्ट था. एज वी मूव अलॉन्ग इन आर जर्नी, मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा इसको जल्दी रैप अप करूँगी. हमारे विजिट्स होते थे और मुझे याद है मैं हर विजिट में डॉक्टर्स के पास जाती थी कि मुझे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनाएंगे. आई रिमेंबर मेरे 4 months के बाद विजिट था एंड माई डॉक्टर, उन्होंने मुझे अकेले रूम में रखा था. माई सिस्टर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. उन्होंने कहा देखो, अब मैं उस दिन डोनर्स लेके गई थी कि यू नो ये मुझे चलाएंगे, तो यार योर कांट ब्राइब अस विद दीज डोनर्स और रिश्वत और एनीथिंग लाइक दैट. एंड ही सेड कि हरीम लुक, थिंग्स आर वेरी सीरियस एंड देयर 70% चांसेस यू वोंट बी एबल टू वॉक, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू बी ऑन अ व्हील चेयर. सो मुझे लगता था कि यू नो अल्लाह मियाँ एक तो वर्स्ट चीज़ तो हो गई ना, एक बहुत बुरी चीज़ होनी थी तो वो तो हो गई. बट देन यू नो देयर इज दिस आयत इन्नमल उसरी युसरा, राइट, विद एवरी हार्डशिप्स इज ईज, राइट. सो अल्लाह मियाँ इज़ प्रॉमिसिंग यू दैट ऐसा नहीं है कि मैं आसानियाँ दूंगा फिर मुश्किलात दूंगा. अल्लाह मियाँ कह रहे हैं मैं मुश्किलात के साथ आसानियाँ दूंगा. तो आई टोल्ड अल्लाह मियाँ, सर अल्लाह मियाँ, आई थॉट दैट यू नो माई वर्स्ट हैज़ हैड हैपन, मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो गया, राइट. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा अब रिकवरी, अब आगे जाऊँगी. बट सेकेंड न्यूज़ ड्रॉप डाउन हुई कि नहीं, यू नीड टू बी ऑन अ व्हील चेयर. And then I remember the day I went back home and I was on wheelchair and I told my mother, how dare he said मैं नहीं चल सकती, मैं खड़ी होंगी. And I did and I collapsed. एंड उस रात मुझे याद है मैं बहुत रोई थी तहज्जुद के टाइम पे. आई क्राइड अ लॉट एंड देन आई ओपन माई इंस्टा एंड देयर वाज दिस किड जिसकी मैंने वीडियो देखी थी. वो मदीना में वो 3 साल का बच्चा था, वो व्हील चेयर पर जा रहा था. अच्छा, अब जब आप इंस्टाग्राम पे एक चीज़ क्लिक करते हो ना तो फिर आप के पास दूसरी सजेशन आ जाती है. सो आई ओपन दी अनदर सजेशन एंड उसमें एक कज़ाकिस्तान का बच्चा है, विच आई वुड वांट पीपल टू आल्सो लुक अप हिम ऑन इंस्टा. हिज नेम इज़ अली आमिर हैप्पी.
And I was like, and he's younger than me. He was like 16, 17. I was like, I am a 23-year-old. What? अल्लाह मियाँ मतलब मेरा राइट भी कैसे मैं कंप्लेन करूँ? क्योंकि जब अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना दिया, did I ever complain him कि मुझे क्यों दिया? And our problem is that we don't realize the very little blessings that we have. हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पाँव चल रहे हैं. अभी मैं आपको बोलूँ आप खड़े हो, just gonna take you 10 seconds, maybe less. It took me a journey of 6 to 8 months to be able to stand. Right, and we take these blessings और अभी हम शुक्र अदा नहीं करते हम अभी भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ नहीं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. We don't realize these blessings कि जो कुछ है अच्छा वही जानते से हुआ होगा. और why do we wait for people to go through? Why don't you think we have stories like divorces, we have stories like किसी की डेथ न्यूज़ हम सुनते हैं, हम बहुत चीज़ें सुनते हैं. like Muniba Mizari, I heard her speeches. I heard all her UN speeches as well. When I'm working, I'm listening constantly to the knowledge, right? And मुझे उनकी speech कभी भी उतनी लगी नहीं होगी, इतनी इफेक्ट नहीं की होगी. When it turned the day when the doctor told me you will be wheelchair ridden, and I re-listened her entire speech, and I felt like I'm living every word she is saying. Muniba Mizari was there, her Insta was there. She's a very famous personality, but did Harim ever thought before if ever something like this happened to her life? So why are we waiting for events to change us? हमारे अराउंड इतना कुछ हो रहा होता है, हम क्यों नहीं पहले से ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं? अच्छा, बीइंग इंसान हम ऐसा है वैसे हम इवेंट्स का इंतज़ार करते हैं. आई थिंक वी डू. जब तक हम लोग फितरत से मजबूर हैं, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है, हम डेफिनेटली चेंज नहीं होते हैं. हम जब तक हम एक चीज़ गुजरती है, वही है ना, लाइक यूर टेस्टिंग योर कप ऑफ कॉफ़ी, यूल ओनली नो कि कॉफ़ी कैसे बनी जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे. आप देख के नहीं बता सकते अच्छा ये कॉफ़ी अच्छी है या नहीं है. ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि हम दूसरों के इवेंट से फ़ायदा उठाएं, दूसरे के इवेंट को देख के इंस्पायर हो जाएं और चीज़ें बेहतर करने लग जाएं. एग्जैक्टली. सो it is really important, like if you are listening this, if you have also come across anything that in your life you're seeing people going through, just don't let it be another story. Just don't wait for that moment to come and then you will change and then you will turn back. And this is the reality of life. मुझे तो reality of the life बहुत hard way पता चली, like मुझे. अच्छा, उस टाइम में ऐसा हुआ कुछ लोग एक्सपोज हुए आपके सामने? बहुत ज़्यादा. सो आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग, लाइक ये तो सबको पता है कि जब आप मुश्किलात में जाते हैं, यू वुड ऑल्सो नो दिस रियली वेल, आपको रियल लोगों का असल तभी पता चलता है. आई रिमेंबर मेरी अभी फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी का मुझे हॉस्पिटल से मूव किया था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी. बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में होता है आपको पता है आप हॉस्पिटल में, अब आपको एम्बुलेंस में, पहले तो मुझे हो गया मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं वापस, बिकॉज आई कुडंट बी, मुझे गाड़ी में नहीं लेके जा सकते थे, आई वॉज दैट इंजर्ड. एंड दे पुट मी बैक ऑन स्ट्रेचर. और मुझे मेरा रूम मैंने देखा वो पूरा एक हॉस्पिटल के रूम की तरह बना हुआ था. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई होम, बट माई रूम बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ हॉस्पिटल रूम, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो वो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हो. अब लोगों का क्या, उनको नहीं पता होता कि यार अगला बंदा अपने 24/7 कैसे गुजारे, कि इमोशन उसके लिए कितना मुश्किल है. Right after my surgery, the first week, I remember people leaving me on my face that, oh, she's disabled now. We can't be with her. She can't walk. She'd be on wheelchair. And those were I was a social freak. I had like 20 friends on board. And I call them bullies. Like, अब तो मैं उनको bullies ही बोलती हूँ. None of them are in my life anymore. But वो जो ये अभी आपको देखेंगे वो लोग, आई रियली होप दे डू, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो जो एक पॉकेट में सब कर रहे होते हैं, वो कलेक्टिव इम्पैक्ट अगले बंदे पे क्या दे रहा होता है. आपका एक एक्सीडेंट हो गया, आप एक ट्रॉमा से डील कर रहे हो, आपको एक इमोशनल टर्मोइल आपके साथ अटैच हो गया, आपके साथ एक फिजिकल चीज़ आपके साथ अटैच हो गई, तो आपकी ऑलरेडी बैटल्स बहुत ज़्यादा हैं. रादर देन बीइंग काइंड, आई थिंक द होल फोकस इज़ लाइक व्हाई कांट वी बी काइंड. एंड पीपल लाइक उस टाइम पे मैं आपको बोलूँ कि यार आपके साथ तो ये हो गया, आप तो व्हील चेयर पे आ गए, सो यू आर ऑलरेडी डीमोटिवेटिंग दैट पर्सन, बिकॉज फ्रॉम दैट पॉइंट आई हैड नो आइडिया कि यार व्हाट माई लाइफ विल बी आफ्टर दिस. आई हैड नो आइडिया. आई वॉज होपफुल. कौन रह गए थे उस वक्त? माँ again? I would say yes, my mother. So जैसे मैंने अपनी spiritual journey का जिक्र किया, my mother, she is a very religious woman. उनका time table goes with नमाज. Since the time मुझे याद है जब मैं थोड़ा practically life को मैंने notice करना शुरू किया है. So I've seen her waking up at tahajjud, sleeping at ashraq, and
if you have to see her schedule, it's based on namaz. So to tell you this background is basically, एक time था मेरी अम्मी मेरे साथ shift हो गई थी, और आप एक patient के साथ shift होना, it's not an easy thing जो bed ridden है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 6-7 महीने नहीं सोई, my mother hasn't slept 6-7 months with me. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन मैंने नमाज़ों का इसलिए ज़िक्र किया था, एक टाइम था, विंटर्स ही थे उस टाइम पे, दिसंबर का टाइम था, एंड नमाज पे 5 मिनट रह गए थे फजर की नमाज में, मेरी आंख लेट खुली थी बिकॉज आई वाज क्राइंग विद पेन एट नाइट. एंड माई मदर वोक अप एंड वो गई एंड शी बॉट दिस गरम पानी इन अ बकेट, एंड ये विंटर्स हैं, माई फ्लोर इन माई रूम इज़ मार्बल, तो ठंडा है काफ़ी ना, एंड फजर का टाइम है, एंड माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर, and she takes my lap, and she put my leg, and she puts it into her lap, and she takes water and she cleans it, okay, and she's making me do wuzu. This is the first time, I think my mother also never noticed this, but she will listen this for the first time. I've gone this raw, and जब उन्होंने वो किया और जब मैंने वो देखा, and I was like, उस टाइम पे जब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, I cried my heart out. And you know that hadith where it said that Allah Mia loves you 70 times more than a mother. Then I go like, if I can't see what my mother is doing right now, अगर मैं आपसे पूछूं how much do you love your mother, can you give it a number? Can you say 100%, infinity, 1000? We can't. How can we say कि हम एक नंबर नहीं टेबल पे ला रहे और हम कह रहे हैं Allah Mia loves us 70 times more than a mother? राइट, यू हैव अ वॉच, लोग इसको उसका मजाक उड़ाएंगे, यू ओन इट, सो यू ओन इट, वो आपकी है, आप उसको डिफेंड करेंगे, वो आपकी है, इट्स योर ओनरशिप. देन अल्लाह मियाँ, वी बिलोंग टू अल्लाह ताला, राइट, ही ओन्स अस, हाउ कैन वी थिंक ही कैन डू समथिंग रॉन्ग विद अस? सो दैट कॉन्सेप्ट व्हेन इट गॉट क्लियर टू मी, एंड इसमें डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू माई मदर, एंड उस टाइम में मैंने अपने आप को ये समझा दिया था कि इट इज़ अ टेस्ट, Allah Mia is testing me, and I will have उम्मीद पे दुनिया कायम है. अच्छा, टेस्ट के बाद रीइन्वेंट भी आप हो गई, लोग भी एक्सपोज हो गए, जीने का ढंग भी सीख लिया, और अगेन अब तो लोन रेंजर हो गई होंगी आप, अब तो आगे आपके लिए कोई भी लाइफ आएगी, आप कहेंगे जी तो कोई मसला ही नहीं है. I think, like I said, Innama usri yusra, with hardship comes ease. Even if somebody is looking at me right now, this is like after 3 years of my surgery that I'm sitting here and talking about it. Like my mother said me once that a woman is like a tree. A tree nurtures, it provides shadow. मेरी अम्मी ने कहा हाँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ और आगे आएगा लाइफ में. So you need to be ready, you need to be strong. She said, I know you are affected, but my mother always taught us to find blessings in the little things. जैसे जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी, मैं कंप्लेन करती थी, उन्होंने कहा हरीम, यू नीड टू थिंक अबाउट द पीपल हु आर इन ICU, दे आर प्रेइंग टू बी इन द प्लेस यू आर राइट नाउ. तो वही ना, आपकी जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसमें भी अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू कर दें, दैट इज़ द होल आइडिया. एंड आई फील लाइक इस्लाम की अगर आप समरी निकालें, व्हाट इट इज़ सब्र एंड शुक्र. अल्लाह मैंने दिया, सब्र एंड शुक्र. अल्लाह मैंने कुछ ले लिया, सब्र एंड शुक्र. This is what life is about. हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत वीक नहीं है? It is, definitely. For me it was. I was never religious, I was never spiritual, and I am telling I learned it the hard way. So those 6 months of journey on the bed, which was immensely painful because my washroom mobility was zero. मेरे एक हाथ में मुझे याद है 5 ड्रिप्स लगती थी और 5 मुझे वो इंजेक्ट करते थे पेन किलर्स, एंड इट वुड लाइक स्वेल्ड अप. तो मैं ग्लास भी नहीं खुद पकड़ सकती थी. आई वॉज दैट डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी, राइट. एंड एट दैट पॉइंट आई रिमेंबर कि मुझे कोई भी एक इमोशन आता था, आई वुड यूट्यूब इट, एंड आई वुड लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू, डू यू नो अबाउट हज़रत उमर फारूक, what are his characteristics? We don't even know their biographies. We don't know हज़रत अबू बकर की बायोग्राफ़ी. हमें मोटा मोटा तो याद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमें वो इंशाल्लाह जन्नत में we will interact with them, can we say oh that is Hazrat Umar Farooq? Because हमने तो उनकी पढ़ाई नहीं, उनकी फ़िज़ीक के बारे में ही नहीं हमें पता, राइट. उनकी हाइट क्या थी, वो उनकी पर्सनैलिटी क्या थी. सो Islam has everything, it has everything. Again, everybody has to go in this 6x3. Don't wait for it to be so long to come back to this. And you know, and आजकल दुनिया में there's so much happening. We all know where the world is heading to.
एंड मुझे याद है वन ऑफ माई फ्रेंड वुड से कि योर एवरी आंसर इज़ इन कुरान, और मैं कहती थी अच्छा हाँ ठीक है. आई वॉज लाइक एवरी इंडिविजुअल, लाइक यू नो, मैं आई वॉज नॉट अ हिजाबी, आई वॉज लाइक अ गर्ल नॉर्मल. मैं तो स्कार्फ अभी 1 साल पहले मैंने लेना शुरू किया. आई वॉज अ नॉर्मल गर्ल, फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपने बाल, सोशली खुश हूँ. टिल द टाइम माई फ्रेंड गिफ्टेड मी द कुरान एंड शी सेड आई वांट यू टू रीड इट, एंड आई स्टार्टेड ओपनिंग इट. And trust me, I got hooked to it, and alhamdulillah, like it's almost on the completion right now. It has got answers to everything. Only you are not reading it, you don't know. But once you start, छोटी छोटी सी चीज़ें, like you know, हर चीज़ का जवाब कुरान में है. Trust me, since 2 years in Ramadan, I like मैंने यही कोशिश की है कि more than Arabic, I need to read the translation. जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसमें लिखा हुआ क्या है, अगर आपको मैं एक वो देती हूँ, ऐसे देती हूँ कि आप उसको पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँ आपने फिर दूसरे लोगों को इसमें से बताना है. अगर आपने वो समझा हुआ ही नहीं है, मैं कैसे बता पाऊँगा? आप कैसे बताएंगे? आप कैसे उसको फॉलो कर पाएंगे? वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, राइट? पीपल से, ओ यू आर सो हम्बल, यू आर सो काइंड, एंड आई सेड इट इज़ द नॉर्मल वे. एंड हाउ एम आई गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट? इट इज़ थ्रू कुरान. मतलब उर्दू में पढ़ना ज़रूरी है अरबी के बाद? यू कैन रीड इट इन इंग्लिश. आई हैव रेड इट इन इंग्लिश ताकि समझ सकें आप. यस, एनी वे. आजकल तो बहुत आसानी है, यूट्यूब कर लें, इट्स सो ईजी. वी आर वर्किंग, हम लोग इतनी नॉनसेंस चीज़ें सुन रहे होते हैं. व्हाई नॉट दीज थिंग्स? ट्रस्ट मी, इफ़ यू. अच्छा, ये बुरी चीज़ टेम्प्ट बहुत करती है ना. अगर आप नेटफ्लिक्स लगा लें एक तरफ और एक तरफ दूसरी तरफ बोलें कि आप इस्लाम की तरफ आ जाएं, लोग उस तरफ ज़रा चले जाएंगे सीरीज़ देखने के लिए. ये टेम्प्ट भी तो बहुत करती हैं. इट डज. सो सी, जहाँ पे ग्रे एरिया होता है वहाँ पे शैतान आके बैठता है, राइट? अब हम अगर ये बोलें कि इफ़ आई एम ऑन अ डाइट एंड आई नो कि जंक भी है और कैलोरी वाला फूड भी खाना है, इट्स अ चॉइसेस आई हैव टू मेक, राइट? दिस द वे ऑफ पर्सपेक्टिव दैट यू ब्रिंग योर लाइफ इन, राइट? सो इट्स अबाउट दैट एज वेल. एंड सो आई थिंक हमारी थोड़ी सी स्टोरी बीच पे रह गई थी दैट when the doctor announced and told me okay, you know, you'll be wheelchair ridden, and I accepted it. I said okay fine, let's see how life goes on a wheelchair, because 23 years से पहले तो कभी complain नहीं की. अच्छा, वो easy नहीं होगा जितना आपने easy बताया इस वक्त? It was not. आपने easy किया था इसको? It was like I was. इस तरह करना तो बहुत मुश्किल होगा ना. I was very like I never let it out. मतलब मुझे था कि एक चीज़ हो गई है मेरे साथ, इसको accept कर लिया था. I think I accepted my trauma, and trust me, मैंने घड़ी का एक सेकंड काउंट किया है. एक सेकंड कि यू नो, अच्छा अभी 1 मिनट होगा, अच्छा अभी 5 मिनट हो गए, अच्छा अब 1 घंटा हो गया. बिकॉज कोविड था, मेरे पास इतना भी वो नहीं था कि यू नो मैं विंडो तक चली जाऊँ, मैं स्काई देख लूँ, आई एम एबल टू सी द सनलाइट और एनीथिंग. एंड व्हील चेयर की जर्नी भी ऐसे होती थी कि बेड से हमारी ये एक्सरसाइज होती थी मेरी पूरी, कि बेड से पहले शिफ्ट यूँ होना है, फिर वापस से बेड पे आना है, फिर यू शिफ्ट होके नेक्स्ट वीक व्हील चेयर पे जाना, फिर व्हील चेयर से ऊपर आना. इट वॉज अ जर्नी. It was a very lengthy journey, and I remember just because I accepted this, just because I accepted okay, this is a, you know, एक मुश्किल है, मुश्किल के बाद आसानियाँ भी आएंगी, and you just accept it. अल्लाह मियाँ की blessing है, He loves you more than 70 times more than a mother. So I accepted it, and I remember जब मैं 1 महीने बाद दोबारा डॉक्टर के पास गई. आप अगर मेरे अभी भी एक्सरेज देख लेना, आप क्वेश्चन करेंगे खड़ी कैसे हो रही है, because everybody says me that you need to do so much sugar, how are you able to stand and all of that. I went back to my doctors again, and they said तुम्हारे x-rays have changed miraculously and we can make you walk now. And that was like, you know, कितने से बाद? So it was like right after 1 month of the last news that they broke me, and after that आप सोचिए मैं 6-7 महीने में गायब हूँ मार्केट से. मैं अपनी पुरानी उससे भी रिज़ाइन करके आई वॉज ऑफ द मार्केट. कोविड भी है. अच्छा, लोग भी गायब हो गए होंगे, सब गायब थे, राइट? सो आई वॉज नॉट इन द मार्केट. एंड जैसे ही मेरे डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली है, आई वॉज स्टिल ऑन व्हील चेयर. आई स्टार्टेड गेटिंग रैंडम कॉल्स, रैंडम मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स. वी वॉन्ट यू टू डू आवर हाउस, वी वॉन्ट टू मीट यू. एंड उस टाइम पे मैंने सोचा कि लाइक यू नो व्हाट, लाइक यू नो, एंड trust me, my first 4 contracts I signed from the drawing room of my home, being on a wheelchair. And that's when I told my parents I can't sit back, and ये तो अल्लाह में opportunity दे रहा है, and I need to do something. And that's where the idea of Sarik Spaces formulated. And Sarik Spaces is also a tribute to my parents, because Sarik is an amalgamation of my parents' names. My mother's name is Saira, my father's name is Tariq. So excellent. Together it's like Sarik. I feel like during that journey it was their umbrella under which I was so protected, and I was there was a hope for me to move on in my life. So मुझे था कि मैं अपनी कंपनी के अंदर सारे everybody is under that umbrella of our parents,
shadows, and we'll always be protected like that. And ever since that, I think our journey is going on. और इस वक्त जॉब आपने फिर नहीं No, I started plan on कर my लिया था? own thing. So 2020 was the most transforming year where my close friend, अच्छे वाले दोस्त, saw me from being on wheelchair to being on the CEO seat. So you know that journey, and that was the most transforming year of my life. मुझे याद है मैं एक्सीडेंट के टाइम जब मेरी जो रिकवरी जर्नी थी, मैं अल्लाह में से सिर्फ एक दुआ मांगती थी कि अगर आपने मुझे चला दिया ना, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ऑस्कर, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप बस मुझे खड़ा कर दें, लाइक यू नो. एंड मेरे लिए ये बैठना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, लाइक यू नो. सो आई वुड ऑलवेज से कि आप बस मुझे एक दफ़ा आई वांट टू लाइक स्टैंड. एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट डिड आई लॉस्ट in this accident, I would only say it was the ability to bow down in sujood. That is the only thing I've lost. I haven't lost anything. And like I said, it's been 3 years to this, but if you think, oh, she runs a company, she's doing so well and this and that, I still have struggles. I still have challenges, because being a young entrepreneur in Pakistan is another league. Then being a female young entrepreneur in our industry is a separate. कैसे डील करती हैं बाजी, जो कहते हैं बाजी सामान पहुंचने वाला फिर पहुंचता नहीं है? It is very challenging. It is very difficult. I think with me, my challenges were not just कि कोई male dominating इस तरह की इंडस्ट्री में मैं एक female entrepreneur थी. मेरे लिए challenges थे that I was young. And you know, with houses, people think कि जितना आप सीनियर हो, जितना आप एक्सपीरियंस हो, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट. मेरे लिए वो चैलेंजेस ज़्यादा थे. मुझे होता था कि लाइक यू नो, अब नाउ अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स डोंट इवन नो माई मेडिकल स्टोरी एंड हिस्ट्री. नाउ व्हेन दे गेट टू नो, they'll know. I mean, if I'm going through all of this, and कितने अर्से से शुरू किया सारे का आपने? It's been 4 years to us. So, I mean, if I am going through all of those battles and yet I am formulating a company and मेरी job आसान नहीं, I have to be on field, I had to be on my toes all the time. एंड मुझे याद है मेरा अक्सर यही होता था, मेरी फेज़ 8 में साइट्स होती थी, मुझे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आगा खान की तरफ जाना होता था. मेरे ब्रेस पहनती थी, मेरी टांगों में रॉड्स होती थी और 8 स्क्रूज होते थे, और मैं भाग रही होती. क्लाइंट्स को पता भी नहीं होगा? पता भी नहीं होता था. एंड मैं उस बीच में अपनी कंपनी सेट कर रही थी, तो मुझे अपना अकाउंट्स भी सीखना था, अपनी मुझे डिज़ाइन को भी देखना था, अपनी टीम्स को भी रन करना था, क्लाइंट्स को भी देखना था, प्रोजेक्ट्स को भी देखना था. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इफ देयर इज अ यंगस्टर दैट्स कमिंग अहेड, राइट, स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, इफ दे आर कमिंग, लाइक आई सेड, आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज. I come from a very good background, alhamdulillah. I don't need to run my house or anything like that. I'm doing this to be an inspiration for the young female girls, especially in my industry. I feel like if we all start picking up our battles in our industry, in our, you know, scope of work, and try to work towards that, we can together create an impact. अगर एक बच्ची को मैं मुतासर कर लेती हूँ कि यार, no, you can also do it. And because, like I said, I come from privilege, but yet I started from zero. Even a single pencil to an eraser in my office is my own hard-earned money. So the whole idea is कि अब मैं अगर अपने एम्प्लॉय के साथ बैठती हूँ ना, I can tell them how to start from a zero. Okay, it can't be like, so if और ये कॉन्फिडेंस लेवल भी होना कि जीरो भी अगर चली भी गई तो कोई इशू नहीं होगा, दोबारा स्टार्ट कर, दोबारा बना. So the whole concept ना कि आपने तवक्कुल करना अल्लाह पे, आपकी होप है. Like a bird is flying in the morning, उसको नहीं पता उसने खाना कहाँ से खाना है, वो तो उड़ रही है, अल्लाह तवक्कुल निकलती है, वो एफर्ट कर रही है ना, खाना तो उसको अल्लाह मियाँ दे रहा है, राइट. सो व्हेन अल्लाह मियाँ हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड अस कि तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें तो हम टेक ओवर कर रहे हैं. तुम्हें बस मैं कह रहा हूँ, तुम एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनने पे फोकस करो. वी फॉरगेट दैट एंड वी फोकस ऑन द अदर थिंग. वी आर रनिंग आफ्टर मनी, वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्ड, वी आर रनिंग आफ्टर माई फला बंदे ने हमें ये बोल दिया, वो बोल दिया, एंड वी आर स्ट्रेस. And we're not focusing on the main aspect of life. He's going to judge us on being a human being and being a Muslim. Okay, I'm an architect, but yes, I don't want to be known just for being an architect. I want to be known as, okay, Hareem, like we are having this conversation. My main objective would be, okay, I had such a kind conversation with you. Okay, this human being is so kind. That is what I want to be known for. All of these labels come later. You being a human, then you being a Muslim or whatever your ethnicity is, comes first. बिजनेस में भी ऐसा कॉन्सेप्ट रखती हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज़्यादा कुर्बत होती जा रही है अब इस तरफ. So I would say my biggest inspiration is Hazrat Khatija रज़ी ताला अन्हा.
And when I started off, I listened her biography. I admire her so much. She was one of the most graceful lady, mashallah, the way she conducted business. And with me, अगर कोई मुझसे पूछे कि वो you were so 23 थी and I had like big names in my portfolio at that time. और लोगों को 30 40 साल लग जाते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए, because when I started, I got the kind of projects that I wanted. मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ लगानी पड़ती थी, मैं हाथ तकती थी और मैं कर लेती थी. आई हैड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी ब्लेस्ड. सो विद दैट आई थिंक कि वही वाली जो बात मैं भी आपको बता रही हूँ कि जो आपकी इंस्पिरेशंस आ जाती हैं ऐसी पर्सनालिटी से, सो एट दैट पॉइंट अगर कोई मुझसे पूछे ना व्हाट इज़ द फार्मूला, आई से लाइक मैं बहुत एक कॉमन एग्जांपल करूँगी जो सबको पता होगा. इज़ अ वेरी फास्ट फूड चेन अल्बैक. What is their policy? With every meal, there's a 1% going to Allah. Every meal going 1% to Allah. So I thought कि शुरू में partnerships करती हूँ, ये करती हूँ. मैंने कहा नहीं. Because one of my father's friend told me that you can eat and drink with your friends, but you can't trade with them. And I said it was the best advice he gave me. ऐसे खुद करूँगी. 4 बजे जागना पड़ जाए, 5 बजे जागना पड़ जाए. I know what I want to bring on table, right? So, but I made Allamia my partner. If anybody wants to know like what is the formula to fame or success or money, this is the formula. Make Allah your partner. अल्लाह से पार्टनरशिप कर लें अपना बिजनेस. वो तो बिजनेस फिर कभी what it is, and with that आपने जैसे बोला आपके बिजनेस में क्या मॉड्यूल है. So now every time we get a project, again if my clients listening this, so what we do is that whenever a contract is signed, we give 1%. It goes out in charity. So what that does is putting barakat in that project. It puts barakat in our business as well, and that's how it's going. देखिए चैरिटी के अलावा मैं जो सेफ़ हुई थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ चैरिटी. लाइक बिकॉज आई रिमेंबर मैंने अपने एक्सीडेंट से 3 साल पहले से आई स्टार्टेड ऑफ दैट एवरी लाइक वेन एवर माई बर्थडेज और ईद आती थी तो मुझे होता था जो हम इतने फैंसी डिनर्स करते हैं, I turned it into that every year I want to cover an orphanage, I want to cover an old home, and I started doing that. मुझे लगता है because of that I was safe and I was given a second chance. And even in Quran, every other second ayat is telling you, Allah Mia says कि भाई मेरा आपके ऊपर किसी चीज़ का कर्ज नहीं है. I'm talking about Allah Ta'ala who has made the universe. आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, आप हुंजा चले जाएँ, He's made that world. And He's saying मैं इंसान का सिर्फ एक चीज़ का मकरूज़ हूँ, that is ज़कात, that is charity. वही हम नहीं देते. वो हम नहीं देते. Right? So if we, and honestly speaking, if you start making Allah the center of attraction of your life, you'll be called a good human being, you'll be called a great daughter, you'll be called a good friend. आप अगर अल्लाह ताला को एक सेंटर पॉइंट बना दे अपनी लाइफ का, ज़रूरी नहीं आप अपनी अपीयरेंस पे उस चीज़ को दिखाएं. इट्स नॉट नेसेसरी. इट्स अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. योर नीयत इज़ व्हाट मैटर्स. And that's how you can go on. So I remember even with जब भी हम charity की बात कर रहे हैं, I started my hijab like a year back. We're going to come on that also. So there's a page that I also want people to know about. It's called Here to Help. And मुझे जब मैं हिजाब करके आई उस टाइम पे I went for umrah basically. मेरा मतलब नेक्स्ट ईयर ऑफ माई सर्जरी 2020 कोविड था, उम्रा बंद हो गया था. एंड मुझे याद है मुझे जब भी कोई पूछता था ना व्हेन इज़ योर फाइनल स्टेप दैट यूर हील, आई वुड ऑलवेज टेल देम दैट आई वांट टू गो टू मक्का, आई नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ काबा. दैट्स व्हेन आई फील लाइक कि मेरा क्लोजर मुझे मिल जाएगा. आई नीड टू गो देयर. सो कोविड आ गया था, उम्रा वॉज क्लोज. एंड देन अ लॉट ऑफ द पीपल जब खुला 2022 में, देन अ लॉट ऑफ द पीपल लाइक मैसेज मी दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन यू वांट टू गो एंड सी, यू आर द फर्स्ट पर्सन यू वांट यू जस्ट टू गो एंड एक्सपीरियंस. सो आई रिमेंबर हम दिसंबर में खुला था और हमने ट्राई कर दिया था. 21 के दिसंबर में खुला था. वी कीप ऑन अप्लाइंग कि हमारा आ जाए वीज़ा, आ जाए. हमारा वीज़ा आया रमज़ान में जाके. एंड आई गॉट माई वीज़ा द डे आई हैड टू फ्लाई. So it was also like, Allah Mia has planned that up. And I went there and I stand in front of Kaaba and I was obviously मैं भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, because मैंने कभी किसी के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया था. जैसे मैं अभी आपको सारी अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, मैंने कभी किसी के सामने इतना ओपन एंड बताया नहीं था मेरे साथ क्या हुआ था. बिकॉज एक्सीडेंट के 6 महीने गुजरे, उसके बाद मेरी कंपनी शुरू हो गई, मैं उन स्ट्रगल्स में लग गई. सो आई हैड नो, बीच में कोई टाइम नहीं था कि मैं अपना हीलिंग को थोड़ा इंजॉय करती या मैं प्रोसेस करती. एंड व्हेन आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ काबा, इट फेल्ट लाइक you're healed. You just I've called you just to give you तुम्हारे सब्र की ट्रॉफीज, तुम हील्ड हो. एंड आई रिमेंबर लाइक आई सेड द ओनली थिंग दैट आई
that I lost in this accident was the ability to bow down in sujood. So मैं बड़ी कोशिश करती थी, मुझसे मतलब I pray on chair now. एंड मेरी अम्मी को भी बहुत है कि लाइक यू नो शी जस्ट स्टार्ट्स प्रेइंग कि इतनी यंग उम्र में शी केम ऑन द चेयर एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं उन एक हफ्ते में ना बड़ी कोशिश करी थी, मैं कुर्सी से ना नीचे बैठने की कोशिश करती थी, ऊपर जाती थी कि किसी तरह ना मैं एक्सपीरियंस कर लूँ. अगेन अनदर थिंग, नमाज पहले भी पढ़ती थी, कभी इतना क्रेव नहीं हुआ of putting your forehead onto the ground and the value for it, and it feels like कि मतलब I miss it so much right now because I can't experience it. And I remember it was my last day and I told my sister कि यार I want to do it. I want to say my shukr ki nafil, and the only place I want to do it is here. So I remember it was my last day. I was standing in front of Kaaba and मेरे knees जो हैं वो 2 दफ़ा उनकी सर्जरी हो चुकी हुई है. So they are cut through so bad कि अगर उसको मैं हल्का सा यहाँ पे भी टच भी करूँगी ना, मुझे सेंसेशन फील होती है, बिकॉज वो फुल ही लाइक आई डोंट वांट लाइक गेट इनटू टू मच डिटेल, बट वो बहुत सिवियरली ऑपरेटेड हुए थे. माई नीज़ वर कम्प्लीटली कट डाउन. तो मेरे सारे एक्सीडेंट में वो पॉइंट डैमेज थे जो इंसान को खड़ा करता है या आपको बो डाउन करता है. सो माई मिड पॉइंट ऑफ माई बैक स्पाइन, माई नीज, माई लेग्स, माई एंकल्स, जिससे आपने नीचे जाना होता है, खड़ा होना होता है, दे वर ऑल badly impacted. So I remember we had a travel pillow, we put that on ground and she said okay try. And just because I was standing and I was under that whole feeling that Kaaba is in front of me and I get to do sujood after 2.5 years, and I bow down in sujood, and I think it was the most beautiful feeling. I had 2 rods, again 8 screws, braces पहनी में, पाँव में braces पहनी में, and I bow down in sujood. उसके बाद नहीं हुआ, बट उस दिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई रिमेंबर देन आई वेंट टू मदीना, और उम्रा के बाद बहुत मुश्किल हो गया था आपको रोज़ा रसूल का वो मिलना, सारा चीज़ें. एंड मुझे याद है मैं फर्स्ट डे गई, फर्स्ट डे आई वाज स्टैंडिंग इन माई नमाज विदाउट एन अपॉइंटमेंट. I got to go and say my salam as well. And then that was a Friday and I was sitting, and iftari se pehle some thoughts came in my mind ke, you know, how Hazrat Khatija would dress or how Hazrat Aisha would dress. And this is me being a girl जो बड़ी मतलब मज़े में ड्रेसअप करने वाली, got beautiful hair, कभी दुपट्टा नहीं सही लेने वाली and all of that. And these thoughts are coming in my mind. So you know at times when your glass is full, you moved into the next one, right? क्योंकि मुझे लगा मेरा emotional connection अल्लाह मियाँ से बहुत strong हो गया. So it's time to move on the next one, right? So that next stage was that Allah Mia was expecting something from me, right? And मुझे हर कोई बोलता था पहले, वैसे मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम्हारी कॉलिंग आती है हिजाब की और समथिंग लाइक दैट. आई नेवर थॉट आई विल बी अ हिजाबी. मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बाल नबीला से कटवा के गई थी कि मैं ईद में फ्लॉन्ट करूँगी, यू नो. आई वॉज दैट प्रिपेयर्ड कि आई विल कम बैक, और मैंने अपने मतलब बाल वाल सब करवा के पहले ही चली जाऊँ, बिकॉज मैं आऊँगी ईद में थोड़ा सा टाइम होगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. सो मैं फुल प्रिपेयर गई थी, लाइक दिस प्रिपेयर्ड आई वॉज. एंड जब वो थॉट आया ना, आई वाज लाइक ओके अल्लाह मियाँ नाउ व्हाट. एंड आई वाज लाइक वेल लेट्स जस्ट डू द नियत. आई एम नॉट गोना पुट इट इनटू वर्ड्स, बट मैं नियत कर रही हूँ, आगे आप मेरी मदद करेंगे. तो वो जो आपका पहला एक पॉइंट था ना कि आगे आपको जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, राइट. सो आई केम बैक एंड माई मदर वॉज लाइक यू आर taking hetzka, because she thought I would be the last person who will even carry a dupatta. But then when she saw me conducting my meetings, meeting my clients, and then she saw me to Eid में भी full scarf लेकर आ रही है, and I said yes, I have done this niyat and I want to continue. So it's been 1 year that I'm taking hijab, alhamdulillah. And उस time से मुझे याद है कि जब I found this page that is called Here to Help. They help breast cancer patients and cancer patients. They make wigs and they make certain hair treatment for those people to help them, you know, जिनके बाल नहीं रहते कैंसर पेशेंट, जब वो उनको हेल्प आउट करते हैं उन पेशेंट्स को. ऐसा ओके आई कांट फ्लॉन्ट माई हेयर, at least the cancer patients can, right? Because I take hijab now. So I remember I signed up with them, I got my hair cut and I donated those hair. So these are just little bit of inspiration that I want to give out there. Charity is not just with money. Charity can be with a smile, charity can be with a conversation. अच्छा, अगर हिजाब को भी आप कैरी करना चाहे अच्छे से तो आप कर सकते हैं, आपने भी किया हुआ है. Alhamdulillah, like I feel so secure, I feel so graceful in it कि मुझे कभी शौक भी नहीं हुआ शीशे के सामने खड़े होकर देखने के लिए कि how I look now. No. I think alhamdulillah I'm so happy that all of this happened. और वही वाली बात, जब ये सब कुछ हो रहा था आपको समझ नहीं आ रहा होता,
उस टाइमलाइन में आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो जो 23 नवंबर को हुआ था उसने आगे कितना जाना था. When I came back from that उम्र, ओके आई एम अ हिजाबी, वही आपकी वाली बात डिस्ट्रैक्शन. तो शैतान तो सबसे पहले आके आपको अटैक करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब आप तो एक चेरी ऑन द केक बन के आ गए हैं. And I was not expecting that. After 2 years, I remember I started having post-surgery pains again. There was a doctor I met on board. Again, वो वाली बात कि आपको अल्लाह मियाँ मिलवाता है ऐसी खुद ही लोगों से. Random मैं किसी सर्जन से मिली. He was the head of at a hospital जो कि रन कर रहे थे जो मेरा केस था उसका डिपार्टमेंट वो रन कर रहे थे. And I took a appointment from him and I went and he said, Hareen, you need to undergo a second surgery. And I was like, अब 2 साल गुजर गए, बंदा क्या सोचेगा, आप तो हील हो आपको. और मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था आपकी रॉड्स नहीं कभी निकलती. अगेन विद हार्डशिप्स कम्स ईज, राइट. सो आई वेंट एंड ही सेड नो वी हैव टू ऑपरेट यू बिकॉज तुम्हारे जो ब्लड है अंदर से वो सर्कुलेट सही नहीं हो रहा, तुम्हारी रॉड्स जो हैं वो इतनी इंटैक्ट हो गई हैं कि अगर हमने इसको नहीं निकाला प्रॉब्लम होगी. I'm now coming back to hospital. Now this was the time when I had everything. I had a firm, I had a team, I had projects, I had clients, I had everything. I was traveling the world, everything. उन रॉड्स के साथ. उन रॉड्स के साथ. And now going back to again कि यार आपने दोबारा जाना है, उसी एक्सपीरियंस से आपने गुजरना है, आपने दोबारा हॉस्पिटल जाना है और आपने दोबारा ऑपरेट होना है, फिर बेड पे जाना है, फिर टाइम लेना है और फिर आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई जाएगी दैट देयर इज अनदर चांस कि वी विल सी आफ्टर सर्जरी इफ यू विल बी एबल टू वॉक और नॉट. तो आप सोचते मैं कराऊँ नहीं कराऊँ तब भी मसला. राइट. सो आफ्टर 2 years I went back to that again thing, but this time I went with a lot of tawakkul because this Hareem was not the Hareem of 23rd November. She had evolved. Her perspective of life had changed. अच्छा, अब आपका तो बिजनेस के साथ आपने अल्लाह को भी शामिल किया हुआ है, तो अब आप तो बिजनेस भी ठीक तरह करना है आपको. Exactly. आप तो वो भी नहीं कर सकती जो यूजुअली कभी-कभी Exactly हो जाता है, राइट. और मैं अभी भी अपने आप को यही समझाती हूँ, यू नो, अगर अल्लाह में आपको स्ट्रेट एक चीज़ से रिस्क दे रहा है, यू डोंट हैव टू डू राइट लेफ्ट. एंड देयर हर फील्ड में करप्शन होती है, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. This was something I picked up कि अच्छा I need to work on the work ethics of the office. Like my work environment right now, the goals of SARIC is and how the vision behind SARIC is that in my office, any individual who is coming, they have the ability to come and be the CEO. I don't want them to go through the struggles that I did. अच्छा, जो कुछ आपके साथ हुआ अब आप नहीं चाहेंगी कि वो मेरे एम्प्लॉय के साथ हो. Because why we want anybody to go through that struggle of 30 years वो corporate rat बने और फिर वो आए. Why can't it be like कि आप उन लोगों को पहले ही वो positions दे दो, that it is like one mind thinking, then 6 minds thinking for the company, it becomes a bigger cloud. टीम वर्क बिलीव करती हैं आप? Definitely. I think I've got one of the tremendously great team. They're like my family. Like मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली से इतनी क्लोज नहीं जितनी उनके साथ हूँ. It's their support, it's their, वो लोग अभी काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ. I've got one of the most amazing team, the most supportive team. And I want them to, you know, I've told everybody, I am replaceable. I don't want to sit and enjoy my crown forever. You can come, you can also enjoy it, because obviously I want to focus on other things of life as well, right? I can't be just focusing on the work part forever, right? अच्छा, जो पुराने, जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए कि जो पुरानी मिथ है कि जी ड्राइंग रूम जो है ना वो बंद होना चाहिए, ठीक है, उधर नहीं जाते जब तक कोई गेस्ट ना आ जाए, सोफ़ों पे चादरें डाल देनी चाहिए गंद ख़राब ना हो जाए. तो ये तो हमने अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, नई जेंजी जो आ रही है, नई यूथ आ रही है, वो कहते हैं जी हमने अपने लिए लिया है, हम यूज़ करने के लिए लिया ना. ड्राइंग रूम भी यूज़ होना चाहिए, सोफ़े भी यूज़ होने चाहिए, और वो जो डाइनिंग जो एक सेट होता था जो अम्मियाँ यूजुअली लॉक कर देती हैं, लॉक कर देती थी, वो ईद पे खुलेगा, तो हम तो खुद खाएंगे ना उसके अंदर. Exactly. वो जो आने वाला है वो तो आता भी 6 महीने बाद. ऐसा ही है. So you know we are continuously, like I said, when clients come to us and the fresh vibe that we are bringing in our designs, in our projects, is that we motivate and we encourage. हम उनको पहले से ही बताते हैं वी आर वर्किंग ऑन ओपन प्लानिंग. हम कोई ये ड्राइंग डाइनिंग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा निकल रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम उसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं दैट यू आर एबल टू यूज एज एक पार्ट यूज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि वो बंद पड़े हैं, और वो तब यूज होते हैं. व्हाई आर यू स्पेंडिंग मनी, व्हाई आर यू, और वो इतने सबसे ज़्यादा पैसा भी उन स्पेसेस में लगा हुआ होता है और खोलनी भी हमने वही जगह नहीं है, राइट. सो वी आर डिज़ाइनिंग आवर स्पेसेस इन अ वेरी ओपन प्लानिंग. हम क्लाइंट्स को इनकरेज करते हैं. क्लाइंट्स पे ये इंश्योर करती हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसा क्लाइंट है, मुझे रेड कारपेट चाहिए, ब्राउन पर्दे चाहिए, एग्जाम्पल है, और मैं डिस्को करना चाह रहा हूँ, तो हर चीज़ कर देती हैं या कहती हैं कि यार अगर मेरे पास आए तो मेरी तरह चलना होगा, ये मैं पैसे लेकर आया हूँ, जो करना हरीम करें, मैंने बता दिया. सो हाउ वी केटर टू दैट. इस टाइम पे मुझे थोड़ा चैलेंज भी फील होता है, बिकॉज मेरा यही होता है कि ये तो इतनी यंग है, कभी और मुझे होता है अपने बाल ग्रे कर लूँ तो दे विल टेक मी लाइक यू नो कि वो उसके पास
ये इतनी एक्सपीरियंस है कि मैं इससे ले लूँ, वो कभी कभी मुझे चैलेंज फेस होता है, बट आई ट्राई टू एजुकेट माई क्लाइंट्स, आई ट्राई टू एजुकेट. अगर आपको एक लाल कारपेट पसंद भी आ रहा है तो मैं आपको रीजंस बताऊंगी लॉजिकली कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक हमारा प्रोसेस इतना ब्रेक डाउन हुआ है कि अगर एक घर आता है, हम पहले एक जर्नी पूरी शुरू करते हैं, हम उनको पहले हर चीज़ दिखाते हैं, हम उनसे पूरी एक चीज़ की कंफर्मेशन लेते हैं, उनको विजुलाइज करवाते हैं, उनको एक एक मटेरियल फील करवाते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी गो ऑन साइट्स. और साइट्स पे भी फिर हम मॉक्स मार्किंग्स एक ही चीज़ दिखा के हम, ताकि क्लाइंट इज़ एबल टू एंजॉय द जर्नी एज वेल. अच्छा, और ये बताती हैं जो ये यूजुअली लोग पिक्चर ले आते हैं गूगल से निकाल के, ये वाला घर चाहिए, उनको अंदाज़ा ही नहीं क्लाइमेट हमारा, हमारी एयर, हमारे डस्ट, तो ये बताती हैं उनको कि यार ये इधर नहीं, ये पिक्चर तो ठीक है. फॉर बहुत होता है. आई फील लाइक ये जो सोशल मीडिया है, एक तो हर एक को लगता है दैट दे ऑल आर डिजाइनर्स, और जो ब्लॉगर्स ने बना के एक कोने से एक पिक्चर दिखा दी कि वाइट सोफा इज अमेजिंग, और पता नहीं कि तो बैठने के लिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी बैटल है. पिंटरेस्ट सबके फोन्स पे है एंड एवरीबडी थिंक दैट दे आर डिजाइनर्स, बट व्हाट दे डोंट वो व्लॉगर ने मसला किया हुआ है ना, जो व्हाट दे डोंट थिंक इज कि भाई एक प्रोफेशनल अगर आ रहा है डिग्री के साथ, और एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस पे भी मैं यही बोलूँगी, अगर एक एक्सपीरियंस बंदा 10 साल गुजार रहा है, शायद जो मैं हूँ, इफ़ आई एम सो सीरियस अबाउट माई वर्क, मे बी आई एम स्पेंडिंग 20 आवर्स इन अ डे फॉर माई वर्क, आई एम रीडिंग, आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ टू एजुकेट यू, राइट? सो आई थिंक गिव फ्रीडम टू पीपल, ट्रस्ट दैम. इफ़ यू आर गोइंग टू समवन, प्लीज़ ट्रस्ट दैम. वो ऐसे ही नहीं आए हुए इस फील्ड में, वो ऐसे इस मार्केट में नहीं आए हुए. स्पेशली लाइक यू नो विद मी, अगर आप मेरा अगर जो भी है सारा चीज़, जो मेरी इतनी जर्नी रंदी रही है, जो कि आई एम श्योर माई क्लाइंट्स विल नाउ गेट टू नो अबाउट इट, बिकॉज मैंने इसको कभी भी रीज़न नहीं बनाया अपनी काम के लिए, राइट? अगर मेरे वो स्ट्रगल्स थे तो मेरे लिए तो ये करना ज़्यादा मुश्किल था. मैं तो 2 बैटल से लड़ रही थी, राइट? मैंने अपने आप को इमोशनली भी हील करना है, फिज़िकली भी हील करना है, एंड मैं अपना एक ये यंग कंपनी जो चला रही हूँ, उसमें मुझे अकाउंट्स भी मैनेज करना है. फिर वी आर रिलेटेड टू डिज़ाइन फील्ड, तो हमारा माइंड फ्री होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने क्रिएटिविटी लानी है. आप एक अपना ड्रीम लेकर आ रहे हैं, मुझे आपका ड्रीम बेहतर बना के आपको दिखाना है, राइट? हाउ एम आई एबल टू डू इट अगर मैं यहीं से था ही नहीं हूँ? सो राइट, आई थिंक दिस इज़ व्हाट पीपल नीड टू इनकरेज व्हेन यू आर सीइंग अ यंगस्टर, व्हेन यू आर सीइंग एनीबडी वर्किंग. मैनेज कर लेती हैं फैमिली को, काम को? आई अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ तो आई थिंक माई वर्क इज़ become one of my major parts of my life, but I do balance things out. हरीम, इतना कुछ तो आप कर रही हैं, ये बताएं क्या प्लान्स हैं? रुकने वाली हैं या अभी आप तो पार्टी शुरू हुई है? So for Sarik, we have alhamdulillah great plans. We are already presenting ourselves on a national level, and definitely we have gotten great opportunities on international platform as well. My always focus was to first serve my homeland and have a strong system here, and then focus on the international market. So there are definitely things in pipeline. Inshallah, we are working towards it, and I believe in like action rather than speaking. And one thing that I would like to talk about is that something that we are working on, which is something very exciting that is going to be coming up very soon. I think when this podcast goes live, it will be live too. We're coming with a concept store, and the idea of that concept store is, जैसे अक्सर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, there's like one franchise that takes different brands को वो cater कर रही होती है, जैसे Bloomingdale's कर रहा होता है and all of that. But what I thought is कि पाकिस्तान में we don't have a brand or an architecture studio. Pakistan में there are a lot of people doing great work, and they're not having that kind of recognition. We're talking about vendors who are like doing doors, kitchens, wardrobes, and good like rugs that are being hand knotted in Pakistan. They're not getting promoted the way they should. So what we are doing is that our current studio has been shifted, and it is becoming, we're calling it a SQ headquarters. That is, we are launching a concept store where you will, from the entry point, you are exploring the journey of every element that goes into your house. Excellent. From the door to the lights to Wonderful the rugs idea. It's a center point to everything. And what we are doing with that is that we're taking certain brands on board जिनके साथ हमारा अच्छा experience रह चुका है. They are also doing great work to represent Pakistan on a broader perspective, which is Interword, which is Chuktais, which is BLH, which is Crete Soul, which is marble के कुछ brands है, Popular Marble. So we have taken those on board, and we are like bringing up with this very nice space for our clients to experience. और हमने उसका जो design है वो 5 senses पर रखा हुआ है: taste, touch, smell, listen, and vision. So like you're coming in, you smell something nice, you hear something good, we have good coffee to serve you, and you come and you experience. And ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है, आप बस कितना ऐसा लगने वाला है आपको इस तरफ आने में?
I think It's a good idea. we're just कोई और launching idea ले जाए आपका? we're just launching it in next month, inshallah. So I think the point this podcast goes live, we will be launching our store. So I'm very excited for that, and I'm also really looking forward to that, and something that is one of the goals that I was working forward to, and I think I've achieved that in this age, which means a lot. So yeah, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। thank you so much of yourself. मैं बड़ा मोटिवेट हूँ आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद, और आई होप कि बहुत सारी लड़कियाँ, अगेन लड़के भी, लड़कियाँ भी Yeah. बहुत इंस्पायर होंगी इससे। I think if any one person can get एक वर्ड अगर उनको इंस्पायर कर दे, I think we have done our job, and thank you so much for having me on board.